Good morning, students of class 4. Students, hope all of you are well, are in a cheerful mood, ready for the English class. Students, today I am going to continue with lesson 7 of your Wordsworth English Reader book, Who is the Greatest? So all of you, please take out your books and turn to page number 59. Page number 59. Lesson 7 of your Wordsworth English Reader book, Who is the Greatest? Students, today, first of all, I am going to revise the exercises of language structure, homophones and interjections. And after that, I will be explaining the exercise of grammar glee. So please listen carefully as I revise the language structure exercises. Students, in the last video, I had explained about homophones. Now, what are homophones? Students, homophones are the words with the same sound but with different meanings. Homophones बेटा वो words हैं जिनका pronunciation same होता है but उनकी spelling और meaning different होता है. Like weak and weak. हम दोनों को बेटा weak बोलते हैं but meaning and spelling are different. This weak means जो कमजोर है and this is the weak. 7 days they make a week. Then the next homophone is deer. One deer is the animal heron and the other is deer means a person whom we like a lot. So such words are homophones. Another example is two and two. Hair, H-A-R, hair and hair. So these are all homophones. Their pronunciation sound is same but the spelling and meaning is different. So if you hear the word, you should know that this word will fit in which sentence. Now, there are certain words given in the yellow box and we need to write the homophone of these words. So बेटा आपको homophones पते होना चाहिए. जैसे first is W-E-A-K, weak. Weak का homophone क्या है? W-E-E-K, weak. Then the second word is deer. D-E-E-R, deer. उसका homophone क्या है? D-E-A-R, deer. Then the third word is peace. P-I-E-C-E, peace. Peace means एक छोटा peace and the homophone is P-E-A-C-E, peace मतलब शांति. Then the next word, fourth word is new. K-N-E-W, new मतलब जानना. And इसका जो pair of homophone है that is N-E-W, new means something which is new, नया. Then the fifth word is wait. W-A-I-T, wait. Wait means रुको, stop. And then the pair of this word is W-E-I-G-H-T, wait. Wait means जो something जिसको हम weigh कर सकते हैं. Now we need to write the homophones of these words. So the first one is my dolls are very dash to me. बेटा इस first blank में आएगा D-E-A-R, dear. Dear means something who's I'm very fond of, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ. So my dolls are very dear to me. Second, it has been more than a dash since I met my aunt. In this, W-E-A-K का pairing word क्या है? W-E-E-K, week. So, it has been more than a week since I met my aunt. The third word is, the doctor told my mother that she should lose a little weight. Now, which weight will come? W-E-I-G-H-T. ये किसका homophone है? W-A-I-T का. तो यहाँ पे क्या आएगा? W-E-I-G-H-T, weight. Fourth, we pray for the world dash during our school assembly. Now which piece will come? P-I-E-C-E or P-E-A-C-E? So here P-E-A-C-E piece will come. P-E-A-C-E piece. Then the fifth sentence is, this summer we bought a dash water cooler. New. Which new will come? N-E-W, new.
So we have done this exercise. I hope all of you have written this exercise in your book as well as notebook. Now the second exercise we did in our last video was of interjections. Now what are interjections? Interjections are words used to express strong feelings or sudden emotions. बेटा कभी कभी हमारे किसी चीज के लिए हम रिएक्ट करते हैं तो हमारी सडन फीलिंग्स और इमोशन कुछ वर्ड से पता चलती है एंड दोस वर्ड्स आर नोन एज इंटरजेक्शंस. नाउ द ब्लू बॉक्स आई हैव टोल्ड यू टू राइट लर्न बाय हार्ट सो दैट यू नो कि इस वर्ड का क्या यूजेज किस कॉन्टेक्स्ट में होगा. द फर्स्ट वर्ड इज आहा. आहा इज यूज्ड टू शो विक्ट्री और हैप्पीनेस. आहा इज यूज्ड टू शो विक्ट्री और happiness. Then the second word is ew, used to show bad taste. Especially कुछ bad होता है, कुछ bad smell हो, bad taste है तो आप क्या करते हो? Ew. You make that face as if ये vomit आ रही. तो that is ew. Then the third word is who used to show anger or surprise. And I hope all of you have written this as show, not so. This is misprint. It will be SHOW, show. So who used to show anger or surprise? बोलते हैं ना गुस्से में. This is what? Anger. And so anger or surprise. Then the fourth word is na, used to show disapproval. When you disagree with someone, तो आपके तुरंत मुंह से निकलता है na, isn't it? Then the fifth word is ouch. If somebody pinches you or pokes you, आपके मुंह से तुरंत दर्द होगा आपको और क्या निकलेगा? ouch. So used to express pain. Then there are two words, yahoo और hurray. इसमें बेटा हरी की स्पेलिंग मिसप्रिंट है. ये हरी नहीं हुर्रे होगा. It is HURRAY, hurray, which means used to show great happiness. Now exercise B, complete the sentences using words from the table above given on the top of page number 60. First, dash, we won the match. आप aha भी लिख सकते हैं. Aha, we won the match because it shows victory. Second, dash, what a stinky place it is. Ew. You make that then? So, ew. Ew, what a stinky place that was. Third, dash, it hurts. I hit a stone. चोट लगेगी तो क्या निकलेगा मुंह से? When you are hurt, ouch, ouch. Then the fourth word, dash, why would I go with you? Na, why would I go with you? And the fifth one is, when did I tell you this? You are surprised. When did I tell you this? So, okay. Now students, I am going to start with the Grammarly exercise. And the first exercise is based on subject-verb agreement. बेटा अब हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. अब ऑल ऑफ यू नो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना. सब्जेक्ट कौन है? हु डज द वर्क. जो मेन काम करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट. अब बेटा रूल कहता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन. सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. नाउ द रूल सेज कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल या सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके हिसाब से होगा. ना व्हाट इज वर्ब? जो भी एक्शन हम करते हैं, जो भी वर्क हम करते हैं वो है हमारा क्या? वर्ब. डूइंग वर्ड्स है ना. जो भी हम काम करते हैं वो वर्ब है. एंड सब्जेक्ट कैन बी नाउन और अ प्रोनाउन. अब द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द वर्ब. अब बेटा सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस हो उसमें आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करोगे. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब उस हिसाब से होगा. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट रूल सेज, नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स. इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, its verb
must also be singular. The same rule applies if a subject is plural. अब बेटा ये रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, आपका वर्ब भी उस हिसाब से होगा. फॉर एग्जाम्पल कुछ रूल्स जो फर्स्ट वाले रूल के हिसाब से मैं बता रही हूं बेटा. आपका इट, ही, शी, इन सब के साथ हमेशा ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं. ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस है तो इनके साथ हम अगर कोई वर्ब यूज करेंगे, है ना, तो ये सारों में वर्ब में इधर हम एस लगाएंगे और ईएस ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल इसका आई एम गिविंग यू. ही आपका प्रोनाउन है और स्विम, तो ही स्विम नहीं होगा, ही स्विम्स. यहां पे हमने वर्ब में क्या लगाया बेटा, एस लगाया. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके वर्ब में हमेशा एस या ईएस लगेगा. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगा. एंड फॉर एग्जाम्पल इट, ही, शी की जगह सम नेम इज गिवन. गीता, गीता प्लेस. अब ये आपका सब्जेक्ट गीता, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एक ही है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, वर्ब में एस लग जाएगा. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब में हमेशा एस या ईएस लगेगा अगर वर्ब सिंगुलर है. लेकिन बेटा एक चीज और, उसके अलावा सेंटेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज प्रेजेंट टेंस के लिए, वॉज पास्ट टेंस के लिए, है ना. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी. लेकिन बेटा एक यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर. आर, यू के साथ हमेशा आर लगता है, ये आपको याद रखना है. यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, आर. तो आपका जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और अगर आपको वर्ब लगाना है तो उसमें आप एस या ईएस लगाओगे. दिस इज द फर्स्ट रूल. और इफ द सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस दे स्विम, तो यहां पे स्विम में बेटा एस नहीं लगेगा क्योंकि दे एक से ज्यादा हो गया तो आपको यहां पे एस नहीं लगाना है वर्ब में, ये रूल कहता है. और दे के साथ क्या लगेगा, आर, वर्ब, हाफ. ये आपको हमेशा याद रखना है. अगर आपके सब्जेक्ट में चिल्ड्रन प्ले, सेकेंड है चिल्ड्रन प्ले. अब आप चिल्ड्रन प्लेस नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा, प्लूरल है, तो आपके वर्ब में एस नहीं लगेगा. ये आपको ध्यान में रखना. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके वर्ब में एस या ईएस लगेगा. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपके वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगा. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सॉरी ये तो आपके एग्जाम्पल है. अब सेकेंड रूल आपका क्या है, इफ टू सब्जेक्ट, सेकेंड रूल सेज इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे रिक्वायर अ प्लूरल फॉर्म. अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो दोनों एंड से ज्वाइन किए हैं तो आप क्या करोगे, फिर आप आर लगाओगे, इज नहीं लगाओगे. अगर दो, सपोज एग्जाम्पल आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, निशा एंड रीमा आर स्टडिंग, है ना. हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रवि एंड गीता
आर प्लेइंग, है ना। अब यहाँ पे दो अलग अलग आपके नाउन्स है ना, प्रॉपर नाउन दो अलग, बट दोनों दो लोग के बारे में हम बात कर रहे हैं, रवि एंड गीता। ये किससे ज्वाइन है? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल। तो यहाँ पे जहां पे ये दो लोग हो जाएंगे, मोर देन वन होगा, वहां पे क्या लगेगा बेटा? आपका आर लगेगा। लेकिन खाली अगर रवि होता, रवि अगर होता तो आप क्या लिखते हैं? रवि इज प्लेइंग, बिकॉज हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो इस लगाएंगे। और अगर हम दो लोग जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो अगर उन दो के बारे में बात कर रहे हैं तो मोर देन वन हो जाएगा प्लूरल, तो आप क्या यूज करोगे बेटा? यहाँ पे आर। अगर सिंगल है तो इज, और अगर मोर देन वन है, दो नेम है और एंड से ज्वाइन किए हैं, तो आप उसको प्लूरल मानोगे और क्या यूज करोगे? आर। I hope this rule is also clear to you. Now the third rule says, if two subjects are joined by N but refer to the same person or thing, then they require a singular form. अब आपको ये याद रखना है कि कोई दो चीजें हैं, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, ब्रेड एंड butter is a breakfast item. अब यहां पे दो है, ब्रेड एंड बटर, बट जब हम इनको एक के जैसे कंसिडर करते हैं, यहां पे हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे थे, तो अलग अलग इंडिविजुअल थे, बट ओवर हियर ब्रेड एंड बटर हम इनको एक यूनिट मानते हैं, तब हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? आपका वर्ब सिंगुलर फॉर्म यूज करेगा। इज दैट क्लियर? जहां पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात करेंगे वहां पे हम आर लगाएंगे, लेकिन जहां पे दो चीज एंड से है और उनको हम एक यूनिट की तरह लेंगे, तो हमेशा हम क्या लेंगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर। आपको ये याद रखना है कि जहां पे दो चीजों को, तो अगर टू सब्जेक्ट्स आपके ज्वाइंट है एंड से और वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे, ना कि आपके दो चीजें एंड के साथ है और वो एक यूनिट की तरह अगर कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि ब्रेड एंड बटर हम उसको एक मानते हैं, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हैं तो वो एक यूनिट हुआ, दो अलग अलग चीजें नहीं हुई हैं, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? इज दैट क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। नाउ the fourth rule says each and every takes a singular verb. अब बेटा उसके लिए हमको पहले ईच और एवरी में डिफरेंस पता करना होगा। ईच और एवरी दोनों कहीं भी सेंटेंस में आएंगे, आपको याद रखना है कि वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान रखना है, जो ईच होता है बेटा, ईच इज जनरली यूज्ड when you talk about two things or two people. each हम generally यूज करते हैं two things और two people के लिए, और every को हम यूज करते हैं larger number के लिए। larger number के लिए हम every को यूज करते हैं। now I give you some examples. every is used for larger number and each is used for two persons or two things. now let's take the example. now और every और each के संग हमेशा you need to keep in mind कि singular form of verb ही यूज होगा। now if I give the example study each
sentence carefully. इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं हर एक सेंटेंस को आपको केयरफुली पढ़ना है. इसका मतलब ईच किसको डिनोट कर रहा है? किसी एक चीज को. वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक ईच. ईच मतलब वन. यहां पे आपको होगा कि हर एक सेंटेंस को आपको केयरफुली पढ़ना है. तो जहां भी ईच आएगा तो क्या होगा? आपको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है. ओके, नाउ I'll write example. I hope आपको ये क्लियर हो गया है कि ईच का मतलब वन होता है. नाउ अब आपको वर्ब के साथ में एग्जाम्पल देती हूं. There are two boys. Each is smiling. Now example. There are two boys, but हमने वर्ब क्या लगाया बेटा? Is. क्यों is लगाया? Because you are saying there are two boys. We are talking about two boys, but each is smiling. But हम उन दो boys को इंडिविजुअल के जैसे ले रहे हैं. तो each is smiling. जहां भी each और every आएगा आपको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा. Another example I'll tell you. In a football match, each team has 11 players. अब इन अ फुटबॉल मैच कितनी टीम्स होती है? फुटबॉल मैच में दो टीम्स होती है. एंड ईच टीम हैज. हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब किया हैज. ईच क्योंकि ईच टीम वी आर टॉकिंग अबाउट वन टीम, सो हैज आए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. तो बेटा जहां भी ईच और एवरी आएगा यू नीड टू कीप इन माइंड कि हमको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एवरी. I have read every book in the library. Now why every? Because library में there are so many books. ये मैं आपको each और every का difference बता रही थी. Each मैंने बोला for lesser number के लिए use होता है and every is used for more a larger number. This you need to know the difference. Now आपको verb के साथ में बता रही हूँ. Example. He plays tennis. He plays tennis every Sunday. अब बेटा यहां पे he plays tennis every Sunday. he के साथ हमने क्या यूज किया? plays. और every Sunday तो यहां पे he के साथ कौन सा यूज हुआ है? verb, singular form of verb. Then another example. Every girl has written the answer. Every के साथ बेटा क्या यूज हुआ है? Every girl has. तो every के साथ हमने कौन सा फॉर्म ऑफ यूज किया है? has. Every girl, that means we are talking about हर एक लड़की ने आंसर लिखा है. सो हम एज एन इंडिविजुअल बात करें ईच और एवरी को आप हमेशा वन मान के चल रहे हैं क्योंकि एवरी मतलब बहुत सारे लोगों में से आप सबको एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग लेके चल रहे हो. और ईच जनरली टू पर्सन्स या टू थिंग्स के साथ यूज किया जाता है. ठीक है, तो आप दोनों में ही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. Another example I can give you. Every
everybody loves her. अब यहाँ पे देखो everybody loves her because यहाँ पे we are talking about every person. तो loves में हमने क्या लगाया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, हमने सिंगल इसको सिंगल माना, सिंगुलर माना, इसीलिए हमने इसमें वर्ब में क्या लगाया, एस. मैंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स एस और ईएस इन दी वर्ब. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. Everyone has finished the work. बेटा अब everyone के साथ हमने क्या लगाया, has. अगेन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आपको याद रखना है each और every के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. नाउ द फिफ्थ रूल. The fifth rule says the words or, neither, nor, either or take a singular words. बेटा जो भी words हैं or, either, nor ये सारे हमेशा singular verbs रहते हैं. I'll give you an example of the fifth rule. Neither was a very good singer. आप बेटा नीदर दिया हुआ है, नीदर के साथ हमने क्या लगाया, was. मतलब उनमें से कोई भी अच्छा सिंगर नहीं था. नीदर अगेन हम जो एक ग्रुप है उसमें से हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका हमारा वर्ब इज ऑलवेज बी सिंगुलर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example number 2, this is 1. Cookies or cake is on offer. मतलब आप कुकीज और केक, इसके साथ हमने वर्ब क्या यूज किया, इज. मतलब इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, ये ऑफर चल रहा है. तो कुकीज और केक, दैट मीन्स we need to choose one. तो आपका वर्ब कौन सा होगा, हमेशा सिंगुलर. you need to keep in mind कि जहां भी either, neither और ये सब सेंटेंस में आएगा तो उनको हम उनके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. अनदर एग्जाम्पल. रवि नॉर दीपक is at the function. Ravi nor Deepak is at the function. This means कि हम दोनों इनको अलग अलग इंडिविजुअल के जैसे ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया, सिंगुलर. कि रवि भी नहीं था और दीपक भी, क्यों दोनों को हम अलग अलग ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे बेटा, सिंगुलर. सो ये आपको ध्यान रखना है that either or, neither nor, they all take a singular verb. Now let's do the exercise A of subject verb agreement. Now the exercise is exercise A of grammar key. Fill in the blanks by choosing the correct verbs from the bracket. Now the first one. Each of you dash
बेटा ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए हैं, गेट और गेट्स, बट अभी हमने रूल में क्या पढ़ा कि जिस भी सेंटेंस में ईच या एवरी होगा वो हमेशा कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए हैं, गेट और गेट्स। तो अभी हमने पढ़ा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो कौन सा हम लेंगे, गेट्स। सब वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, तो गेट वर्ब में क्या लग जाएगा, एस। So the correct answer will be each of you gets a reward. Right, gets in the first one. Second, which of these two pens dash yours? ब्रैकेट में दिया is और are। अब बेटा which of these two pens dash yours? Don't get confused, दो पेन है लेकिन you're saying which of these two pens, which of these two pens, दो पेन है उसमें से एक पेन आपका है। Now you need to choose, so you need not get confused. Which of these two पेन से आप कंफ्यूज मत हो, बट इनमें से कोई एक पेन आपका है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, is, because दोनों में से we have to choose one. So which of these two pens is yours? दो पेन है, these two pens, you're talking about two pens, but then you need to choose one pen for yourself कि इनमें से तुम्हारा कौन सा है, so you need to choose your pen. So we are talking about, we are telling you to choose one pen, so we'll be writing is. Now the third one, the mother of these children dash hardworking. Is और are, दो ऑप्शंस दिए। Now the mother of these children, now don't get confused, इसमें सब्जेक्ट क्या है, the mother, ये सब्जेक्ट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मदर। these children की मदर, these children की मदर तो एक ही है, so we are talking about singular subject, so our verb will always be singular. So the mother of these children is hardworking. अब these children सोच के उसको plural मत लेना, so the mother of these children, मतलब these children की जो mother है वो तो वन ही है, तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, is. Now I hope all of you have done this. I'll erase and then write the fourth one. Now the fourth one. Every man and woman, every है बेटा, because जहां भी every और each हो आपको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। dash required to be present in the ceremony. अब every man and woman मतलब जो भी दो लोग, every man and woman जो भी है, we are talking about each individual, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, is। ब्रैकेट में is and are both are given, but we have read the rule that every and each always takes a singular verb. So every man and woman is required to be present in the ceremony. Now the fifth one. Either Aryan or
Kashika dash done this. Has और have. अब either आर्यन और कशिका, अब इन दोनों में से एक के बारे में है ना, दोनों में से एक ने किया है तो हमको यहाँ पे कौन सा लगाना है, has, क्योंकि हम इन दोनों में से कोई एक ने किया है, दोनों ने नहीं किया है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि हम इन दोनों को फिर एक इंडिविजुअल के जैसे ले रहे हैं. ईदर आर्यन मतलब ईदर या तो आर्यन ने किया है या कशिका, दोनों ने मिलकर किया होता तो हम हैव लगाते, बट वन ऑफ देम हैव डन, सो विल बी यूजिंग हैज. इसमें इसमें है ईदर आर्यन और कशिका हैज डन दिस. नाउ 6th, everybody, again every has come, everybody dash a good book. Enjoy enjoys. अब every और each में हमने क्या सीखा है अभी तक रूल के, कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है. तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज enjoys. Everybody enjoys a good book. Everybody enjoys a good book. Students, hope this exercise is clear to you. अगर आपको रूल समझ में आ गए तो there will be no problem in solving the exercise. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.